Hello everyone, good morning. Welcome me back in the topic quadrilateral. Before we start, let me tell you from today for Shantiniketan students I am sending another video, and for Vibgyor student I will be continuing with this topic, that is quadrilateral. Okay? So for Shantiniketan student, as considering the syllabus is different, I am putting another video for them as well. Okay, so in case you are watching this video and you are from Shantiniketan, please avoid watching this video and complete your video first. Okay, of course you can watch any video, there is no issue, no restriction and in that manner, but first complete your syllabus. Okay, of course this topic soon will be coming in front of you as well. So anyway, let's continue what yesterday we have learned. I'll just teach you one simple or short revision of it. So basically what we understood, that there is a parallelogram and we started using the properties of parallelogram. So in case in a parallelogram, if one angle is 90, we call it as rectangle. Okay, see, basically if one angle is 90, all angle will be 90, therefore we directly call it as a rectangle. In a parallelogram, if adjacent sides are equal, we call it as rhombus. We call it as rhombus. So these two important points we proved yesterday, we used rather yesterday about rectangle and rhombus, and of course we started understanding, we understood the concept and we started using it. Similarly, just imagine if there is a rectangle and its adjacent sides are equal. In a rectangle, adjacent sides are equal. So what can we call it as? Think about it. Adjacent sides are equal, that means all sides are equal. And of course it's a rectangle, matlab angles are 90 degree, all sides are equal, and angle 90. What do we call it as? Square. So in a rectangle, in case if we prove adjacent sides are equal, it will be a square. Finished. That's it. So we understood this concept yesterday and we started understanding the question. So let's start the same now as well. Just give me 1 minute. And here is the question. The question is question number 8. From there we start solving. ABCD is a rectangle, okay, in which diagonal AC bisect angle A as well as angle C. Show that ABCD is a square and that okay, it's a square. First of all, वही prove करना है, वही rectangle को square prove करना है. I told you already. However, the diagram is, if it is asked to prove that it is a square, draw the diagram of square only. But while saying, say it as it is rectangle. Diagonal AC bisect angle A as well as angle C, and you're expected to prove it's a square. Square कैसे prove कर सकते हैं? By proving adjacent sides is equal. तो मुझे करना क्या है? ट्रायंगल BAC एंड ट्रायंगल DAC को कॉन्ग्रुएंट करना है, BAC एंड DAC को. सेम थिंग कल हमने जो किया था वही चीज़ हम लोग यहाँ पर भी करने वाले हैं. तो इट्स वेरी क्लियर, ये एंगल 90, ये एंगल 90 है, एंड देन वी हैव AC कॉमन साइड. तो AC इज इक्वल्स टू AC. ऑफकोर्स SAS टेस्ट से इजीली प्रूव हो जाएगा, AAS से प्रूव हो जाएगा, ASA से हो जाएगा, राइट. तो यू कैन इजीली प्रूव दैट दिस two triangles are congruent. If these two triangles are congruent, we can write AB is equals to AD by CPCT. Once you prove that by CPCT, adjacent sides are equal. In the rectangle, if adjacent sides are equal, we call it as rhombus. Or you can say if these are equal, therefore all sides are equal. ओके, क्यों एडजेसेंट साइड इक्वल हो तो ऑल साइड इक्वल हो जाती है? बिकॉज ऑपोजिट आर ऑलरेडी इक्वल. इफ आई प्रूव एडजेसेंट इज इक्वल टू दिस, तो ये और ये इक्वल है, तो ये और ये भी इक्वल होगी, सारे इक्वल हो जाएंगे. ठीक है, समझ में आ गया? देखो, ये y है तो ये y होगा, ये x है तो ये भी x होगा. इफ आई से दैट x इटसेल्फ इज इक्वल टू y, मतलब ऑल विल बी इक्वल, देयरफॉर वी कॉल्ड एज स्क्वायर. तो ये इतना सब कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, ये तो सिंपल लॉजिक है, ये आपको समझ में आ गया. दैट्स इट. तो हम लोग आगे बढ़ते हैं. कमन फटाफट कंप्लीट करते हैं. ये इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, तो इसको मैं डायरेक्टली यहीं पे सॉल्व करता हूँ. यू डोंट हैव टू आई डोंट हैव टू सॉल्व दैट. बेसिकली आपको बस करना क्या है, ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना है. मैं बस आई जस्ट शो यू द ट्रायंगल कहाँ पे है.
प्रॉपरली अंडरस्टैंड करो। पहले ट्रायंगल APD, तो APD को देखते हैं, ये रहा मेरा APD ट्रायंगल, एंड CQB, ये रहा मेरा CQB ट्रायंगल। आई नो दैट इट इज़ अ पैरेललोग्राम, तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि इट इज़ अ पैरेललोग्राम। ABCD इज अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम मतलब अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ऑल दैट। ओके, P and Q are taken such that DP is equals to, okay, DP is equals to PQ, ये दिया हुआ है। ओके, आई नो दैट दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो इस ट्रायंगल को जो येलो रीजन किया हुआ है उसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए मुझे आई नीड वन मोर। तो डोंट यू थिंक ये और ये भी ले सकते हैं हम लोग? क्यों ले सकते हैं? कम ऑन टेल मी, क्यों ले सकते हैं? यस, अल्टरनेट एंगल्स, isn't it? So do we have the triangle congruent right now? Yes, of course they are congruent. By what is they are congruent? SAS test, that's it. AP is equals to CQ. So is AP and CQ are the part of this triangle? Yes, AP is part of this triangle, CQ is also part of this triangle. So that's it. AP and CQ will be part of this triangle and they are also equal. तो अभी हमने ये प्रूव किया कि ये AP and CQ equal है by CPCT. तो this is by CPCT. मैं I am not completely proving it. I am expecting you to do it. Okay, similarly now I'll go for the another triangle congruency AQB. तो ये रहा वो triangle AQB, तो उसको मैं ग्रीन से शेड कर रहा हूँ, एंड CPD होगा। ओके, CPD। तो इन दिस केस आल्सो लेट अस चेक क्या क्या हो सकता है। डू वी हैव, यस, AB इज इक्वल्स टू CD, है ना, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, एंड यहाँ पर भी सेम थिंग होगी, तो ये और ये इक्वल हो जाएंगे। रीजन क्या होगा? अल्टरनेट एंगल। So do we have this green color region triangle also congruent by SAS test? Yes. If these are congruent, then this region this side AQ will be equal to CP. ये भी क्यों होगा? CPCT. तो ये भी होगा CPCT. So now do you think कि ये जो इनर वाला ट्रायंगल है जो अभी हमने शेड किया या फिर डार्क किया, हाईलाइट किया, इज इट ऑल्सो पैरेललोग्राम? ऑफ कोर्स इट इज अ पैरेललोग्राम. व्हाई सो? बिकॉज अपोजिट साइड्स आर इक्वल. If both the pairs of opposite sides are equal, it is going to become a parallelogram. That's it. कितना सिंपल है देखो, राइट? क्लियर हो गया? तो इट इज गोइंग टू बी अ पैरेललोग्राम. फिनिश्ड. दैट्स इट. एकदम ईजी है. तो दिखने के लिए क्वेश्चन बहुत बड़ा दिखता है, बट बेसिकली सब कुछ सेम ही है, बहुत ईजी है. तो इसको मैं डिस्कार्ड कर देता हूँ अभी, आप लोग खुद से सॉल्व करो. 10th क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है? 10th क्वेश्चन देखते हैं. 10th, 11th and 12th. 11th, okay, anyway, ABCD is a parallelogram, okay, ठीक है, ABCD is a parallelogram, and DB is a diagonal and they are perpendiculars, okay, ठीक है. अभी हमें करना है शो दैट, क्या करना है, चलो देखते हैं क्या करना है. APB, okay, you are expected to prove this triangle APB, ठीक है, is congruent to कौन सा ट्रायंगल? ये वाला ट्रायंगल होगा, CQD, ठीक है. Anyway, let's start working on it. How can we do that? सबसे पहले तो ये 90 है, एक पॉइंट तो क्लियर हो गया. उसके बाद ये साइड इज इक्वल टू ये साइड, क्योंकि अपोजिट साइड है. और कुछ करना क्या है? ओके, तो ये एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल. तो बाय व्हाट टेस्ट यू थिंक द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट? यस, AAS टेस्ट, RHS नहीं, AAS टेस्ट. AAS टेस्ट देख लो, एक ट्रायंगल को देखो, सिर्फ येलो को देखो, यू विल कम टू नो कि हाउ आर दे कॉन्ग्रुएंट, है ना, AAS टेस्ट. तो इफ दिस ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ऑफ कोर्स वी हैव AP इज इक्वल टू CPCT. खत्म. कितना इजी है देखो, कितना सिंपल है देखो, कितना इंटरेस्टिंग है देखो, राइट? तो हो गया, दैट्स इट. ये तो बहुत सिंपल था. 11th वन थोड़ा सा वियर्ड है, तो ये हम लोग कल करेंगे, आज नहीं. 12th कंप्लीट कर देते हैं, मतलब थोड़ा अपना काम कंप्लीट कर देते हैं आज का. ये भी इतना इजी नहीं है, तो आई बी सॉल्विंग इट ऑन द शीट नाउ. इसी पे सॉल्व करते हैं, नो प्रॉब्लम. डायग्राम भी है, तो एवरीथिंग वी कैन डू इट. तो वी हैव गिवन दैट ABCD इज ए ट्रेपेजियम. ओके, तो ट्रेपेजियम दिख रहा है. AB पैरेलल टू BC, तो ये पैरेलल है, ये भी दिया है. एंड यस, AD इज इक्वल्स टू BC. It's not like I'm saying that AD is parallel to BC. We are saying AD is equal to BC. इस kind of a trapezium को बोलते हैं isosceles trapezium. What we call as isosceles trapezium. Whereas its non-parallel sides are equal. Try to understand. Its non-parallel sides are equal. We call it as isosceles trapezium. Isosceles trapezium
behaves like a isosceles triangle itself, whereas this angles will be equal and of course this angles will be equal, but ये प्रॉपर्टी नहीं है, ये हमें यहाँ पे क्या करना है, प्रूव करना है. ओके तो इन आइसोसेलेस ट्रायंगल में हम लोग डायरेक्टली यूज़ करते हैं कि एंगल इक्वल है, लेकिन यहाँ पे हमें क्या करना है, उसको प्रूव करना है. तो लेट्स स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग को इसको कैसे प्रूव कर सकते हैं. तो रिमेंबर दैट हम लोगों को वन पेयर ऑफ दिस ए एंड बी आपको प्रूव करना है, दोनों में से एक पेयर, दूसरा पेयर ईजिली आ जाएगा. तो आपको बस एक पेयर की चिंता करनी है, दैट्स इट. एक पेयर आपने आग कर लिया तो आपका वो काम खत्म हो गया. तो वो कौन सा कर सकते हैं हम लोग, सी एंड डी ईजिली कर सकते हैं. ओके तो रिमेंबर जो छोटे वाले हैं एक्यूट एंगल है उसको करना ईजी रहता है, ये बहुत बार आता है क्वेश्चन, रिमेंबर दैट. ओके चलो देखते हैं. सबसे पहले कंस्ट्रक्शन क्या करना है, क्योंकि ये हिंट दिया हुआ ना, इसका यूज़ तो करना ही पड़ेगा, विदाउट दैट यू कैन नॉट सॉल्व इट. कंस्ट्रक्शन क्या करना है, ए बी को एक्सटेंड करो and you have to draw a line parallel to AD passing through C intersecting the extended line AB at E point. तो हमने क्या किया, AB को एक्सटेंड किया and we drew a parallel line to AD. AD से ये parallel line ड्रॉ करते हैं. तो what do you expect now? ADCE is going to be a parallelogram because both the pairs of opposite sides are parallel. है ना, ये parallelogram है, दिख रहा है आपको, वही parallelogram है. ओके हमने अभी वो ट्रेपेजियम का फोकस हटा के पैरेललोग्राम के लिए किया है. ठीक है डन. चलो आगे बढ़ते हैं अभी. सो इफ इट इज अ पैरेललोग्राम डू यू थिंक ए डी विल बी इक्वल टू सी ई. तो हमें पहले लिखना है यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम. ठीक है, इज दैट ए डी इज इक्वल टू सी. देख लो ए डी इज इक्वल टू सी है ना, एंड ये क्यों है, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम. एंड आई नो दैट ए डी इज ऑलरेडी इक्वल टू बी सी. देखो आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है, गिवन है. तो व्हाट डू आई गेट, देयरफॉर सी ई विल बी इक्वल टू बी सी. बराबर ना, सी ई विल बी इक्वल टू बी सी. अभी ठीक से वेरीफाई करो इस ट्रायंगल को, ठीक से देखने की कोशिश करो. सी ई विल बी इक्वल टू बी सी, इजंट इट? डोंट यू थिंक ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाएगा, सी ई विल बी इक्वल टू बी सी, जो मैंने शेड किया हुआ है. दिस इंप्लाइज कलर चेंज, दिस इंप्लाइज द एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई. एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई. ऑफ कोर्स यू कैन गिव प्रॉपर नेम. आई एम गिविंग एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई. दिख रहा है, राइट? ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 1. एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, है ना, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल. ये जो आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी हम नहीं यूज़ करते. रीजन लिखो, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, राइट? नाउ बेसिकली आई वाज ट्राइंग फॉर सी एंड डी. तो सी किसके साथ इक्वल हो सकता है, बी के साथ, अल्टरनेट एंगल. बट एंगल सी इज इक्वल टू एंगल बी, क्या होगा, अल्टरनेट एंगल. एंड एंगल डी इज इक्वल टू एंगल ई. क्यों, यस, अपोजिट साइड्स ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम. देखो इजी है ना. तो इट्स वेरी क्लियर. देखो बी एंड ई इक्वल है तो ये भी क्या हो जाएंगे, इक्वल है. तो फ्रॉम 1 वी हैव एंगल डी इज इक्वल टू एंगल सी. दैट्स इट, हो गया. एंगल डी इज इक्वल टू एंगल सी आ गया मुझे. तो व्हाट इज आस्क्ड हियर, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी आ गया. अभी एज आई सेड के ए एंड बी तो इजीली आ जाएगा. देखो इसको लेके ए एंड बी कैसे निकालते, देखो बहुत इंटरेस्टिंग है. 180 माइनस एंगल डी इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल सी. दोनों में से 180 सेपरेट किया तो इजंट इट. देखो ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये दो क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं. तो डी में से 180 सेपरेट किया तो ए मिल जाएगा. तो दिस विल बी गिव यू एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी. हो गया, ये दूसरा वाला पार्ट भी हो गया. देखो कितना सिंपल था, ईजी था ना, बहुत सिंपल था ना, बहुत सिंपल है, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है. थोड़ा याद रखना है बस आपको, और कुछ नहीं. चलो मैं बाकी सब सारी चीज़ें इरेज करता हूँ सो दैट आई कैन टीच यू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ इट. अरे यार इसको डिस्कार्ड ही कर देता हूँ भाई, आई एम कीपिंग. चलो नाउ एंगल ट्रायंगल ए बी सी. ओके इट मीन टू से कि ये ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू बी ए डी, ये ट्रायंगल. देखो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी हमने प्रूव किया. ये साइड कॉमन है, ये तो ऑलरेडी इक्वल दिया. ऐसे ऐसे से ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो ये इजीली हो जाएगा. देयरफॉर सीपीसीटी भी ये हो जाएगा. फिनिश्ड, दैट्स इट. ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एक्सरसाइज खत्म हो गया. आई नो दैट वी आर लेफ्ट विद द 11th क्वेश्चन, बट वो अभी नहीं करने वाला हूँ मैं. आई विल बी टीचिंग यू सम पार्ट फॉर दैट एंड देन आई विल बी टीचिंग यू दिस क्वेश्चन. फाइन. सो टुमारो हम लोग पहले बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे उसका 11th क्वेश्चन का. उसके बाद हम लोग 11th क्वेश्चन वी विल बी डूइंग इट. ओके फाइन. या फिर मुझे लगता है हम लोग थ्योरम देख के नेक्स्ट एक्सरसाइज देख के फिर 11th क्वेश्चन को ले आएंगे. इजी, डिफिकल्ट नहीं है, डोंट थिंक इट इज़ डिफिकल्ट, ईजी ही है, बट समझना चाहिए और कुछ नहीं. तो उसके लिए थोड़े क्वेश्चंस देखेंगे एंड देन विल कम बैक टू दैट क्वेश्चन. ठीक है, तो थैंक यू सो मच.
बाय बाय, सी यू। इनफ फॉर टुडे। हम लोग को वी आर लेफ्ट विथ ओनली वन एक्सरसाइज एंड सम सॉल्व क्वेश्चंस। कुछ सॉल्व क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हम लोग कल भी करने वाले हैं, ठीक है, ऑफ दिस प्रीवियस एक्सरसाइज, फर्स्ट एक्सरसाइज। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, सी यू टुमारो।